my teaching, my board, where your dreams can take shape. So here is my introduction. As you know that my name is Sarthak Baveja and my qualification is MTech in Mechanical Engineering from NIT Jalandhar, Punjab, and gate score is 2017 was 609, and my experience in teaching JEE mains and NEET examination is 3 years plus. So let's begin with electrostatics. In the last video, we have discussed the definition of the Coulomb's law. What is the Coulomb's law? Basically, we have discussed. Today, we are going to discuss the key points of the Coulomb's law. So let's discuss key points one by one. First point. The first key point about Coulomb's law is the force acts on the two charges. As we know that there are two charges. This is the one charge. This is another charge. The force acts on the two charges. देखो इस पे भी force लग रहा है F12 और इस पे भी force लग रहा है F21. दोनों charges पे force लग रहा है. Second point, the direction in which the forces acting on the two charges are opposite in direction to each other. देखो इस charge पे force लग रहा है left side और इस चार्ज पे फोर्स लग रहा है राइट साइड. क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों में रिपल्जन होगा, दोनों में ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है. अब देखो आप ये सेकंड डायग्राम में यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो भी दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं. फोर्सेस इज एक्टिंग ऑन टू चार्जेस, दोनों चार्ज पे फोर्स भी लग रहे हैं बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. दिस इज द सेकंड की पॉइंट. द डायरेक्शन इन विच द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द टू चार्जेस आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर. देखो फर्स्ट चार्ज पे राइट साइड लग रहा है, सेकंड चार्ज पे लेफ्ट साइड लग रहा है. दोनों केसेस में चाहे दोनों चार्जेस पॉजिटिव हो या एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, दोनों केसेस में जो फोर्सेस की डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है. सिंस फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो यू मस्ट नो दैट we also have to mention the direction with the force, but magnitude of both the forces are same as we have discussed earlier. Now magnitude of the forces is same. This, see, you can see the third key point. Magnitude of the both the forces are same. Next, fourth point is this force is an action reaction pair. Action reaction pair means what? You can see here on charge q1 the force is acting on left side, and on charge q2 the force is acting on right side. These are the action reaction pair. But you can also show action reaction pair like this also. Somebody will question that action reaction pair can also be shown like this. This is the action force on charge 1, let's say, and this is the reaction force on charge 2, let's say. This is the reaction force. But we should always remember that the direction of action reaction pairs is always the line joining between their centers. See, this is the line joining between their centers. So in this direction only action reaction pairs will act. This is the action, this is reaction. Okay, this is action, this is reaction. Action reaction will not act like this. Okay, action reaction will always act between the line joining their centers. You can see in the key point 5 it is written that in key point 5 it is written that direction of the forces is always along the line joining the two charges, hence it is also known as central force. This is the characteristic of central force. Hence these forces are F12 and F21 are central forces. This F12, this F21 is also central force. The forces are central forces in nature. Next we are discussing 60 point. This law is applicable to only for point charges. This is very most important, that applicability of law we must know. The law is applicable for only point charges. So ये जो law है खाली point charges के लिए applicable है. तो हमें यहाँ पे जो Q1 charge है और यहाँ पे जो Q2 charge है दोनों point charge assume करना है ना. तो ये भी Q1 point charge है, ये भी minus Q2 जो है वो point charge है. Okay. The value of proportionality constant is 9 into 10 raised to 9 Newton meter square per Coulomb square. जो proportionality constant का value है वो कितना है? 9 into 10 की power 9. जैसा कि हमने Coulomb's law में अभी पढ़ा था, K Q1 Q2 upon R square होता है ना force का value. Force का value क्या होता है Coulomb's law का? जो force का magnitude होता है K Q1 Q2 upon R square. वहाँ पे जो K कांस्टेंट आता है जिसको हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 into 10 की पावर 9. द वैल्यू ऑफ दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज 9 into 10 raised to 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. दिस इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वैल्यू ऑफ दिस. ओके, सो यू मस्ट रिमेंबर दिस इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वैल्यू. नेक्स्ट इज सिंस द नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट की पॉइंट इज वेरी फंडामेंटल. जैसा कि हमें पता है कि नेट फोर्स सिस्टम पे 0 हो गया है ना, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर है और दोनों चार्जेस पे ऑपोजिट डायरेक्शन पे लग रहा है.
तो नेट फोर्स सिस्टम पे जीरो हो गया दो पार्टिकल्स का, हेंस मोमेंटम इज कंजर्व. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑन मैकेनिक्स. यू हैव रीड दैट अगर किसी भी दो बॉडीज पे नेट फोर्स जीरो हो रहा है, मतलब दो बॉडीज का जो सिस्टम है उस पर नेट फोर्स अगर जीरो हो रहा है तो उसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा. अब देखो कैसे. लेट्स से नेट फोर्स इज जीरो. इफ नेट फोर्स इज जीरो, नेट फोर्स का मतलब क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन. you will know that mass into acceleration will be equal to zero. यहाँ पे हमने इसको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है. हमने दो इलेक्ट्रॉन्स लिए, दोनों का पॉजिटिव चार्ज है और इनिशियली दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं रेस्ट पे है ना. इनिशियली बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर एट रेस्ट. तो दोनों की इनिशियल स्पीड क्या हो गई? जीरो. इसकी भी इनिशियल स्पीड जीरो, इसकी भी इनिशियल स्पीड जीरो. लेट्स से इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगने के बाद इसकी कांस्टेंट स्पीड अचीव हो गई 10 मीटर पर सेकेंड. तो हमें फाइंड करना है कि इस वाले इलेक्ट्रॉन की फाइनल स्पीड क्या होगी, है ना. तो इस एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं ये प्रॉपर्टी को. सिंस द नेट फोर्स ऑन द सिस्टम ऑफ द टू पार्टिकल्स इज जीरो, hence the momentum is conserved. So let's say net force is zero, then we can write mass into acceleration is equal to zero. Okay. In mechanics we have learned that acceleration is nothing but rate of change of velocity, है ना. तो dv by dt we can write, and m is the constant. अगर m constant है तो हम m को ब्रैकेट के अंदर ले सकते, देखो, है ना. अगर m कांस्टेंट है तो इस m को मैं d by dt ऑफ m भी लिख सकता हूँ इस तरह से, है ना. तो d by dt ऑफ m भी इज इक्वल टू जीरो. और किसी भी टर्म का अगर डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है, किसी भी टर्म का अगर डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है तो वो टर्म कांस्टेंट हो जाती है, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन ही जीरो होता है. तो यहाँ से हमें पता चला m इंटू वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया. और एम वी को हम पी भी लिख सकते हैं, है ना. एम वी का जो मैकेनिक्स में नोटेशन होता है दैट इज मोमेंटम. मास इनटू वेलोसिटी इज नथिंग बट मोमेंटम. सो dp by dt is equal to zero, which means p equal to constant. तो यहाँ से p अगर कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियल मोमेंटम जो होगा किसके बराबर हो जाएगा? फाइनल मोमेंटम के बराबर. मतलब m इंटू वी इनिशियल इक्वल टू m इंटू वी फाइनल. अब हम देखते हैं इनिशियल मोमेंटम क्या है. इनिशियली देखो दोनों इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट पे है तो दोनों की वेलोसिटी जीरो है, और दोनों की अगर वेलोसिटी जीरो है, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी जीरो है तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया? जीरो हो गया. अब हम फाइनल मोमेंटम निकालते, देखो मास ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इनटू +10, क्योंकि राइट साइड जा रहा है ना ये, तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है उसका ध्यान रखोगे. तो राइट साइड जा रहा है तो हमने उसको प्लस साइन डिनोट किया, लेफ्ट साइड वाले को क्या डिनोट किया? माइनस साइन डिनोट किया. तो यहाँ पे देखो m e इंटू +10 माइनस एम ई इंटू वी. माइनस एम इंटू वी क्यों किया? क्योंकि v की डायरेक्शन देखो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड हमने नेगेटिव अज्यूम किया बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो यहाँ से हमें v की वैल्यू मिल गई 10 मीटर पर सेकेंड. मतलब जितनी स्पीड से ये जाएगा आगे उतनी स्पीड से ये भी जाएगा. ठीक है. अगर यहाँ पे दोनों चार्जेस अलग अलग होते हैं, है ना, दोनों चार्जेस की वैल्यू अलग होती तो यहाँ पे इस v की वैल्यू कुछ और होती है. अभी देखो आप v की वैल्यू सेम आ गई 10 मीटर पर सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड, है ना. तो बेसिक हमें ये समझना था यहाँ से कि जब भी किसी सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो हो जाता है ना, ये एक्चुअली मैकेनिक्स का पार्ट है. अब देखो मैकेनिक्स भी इलेक्ट्रोस्टैट्स में कैसे लगा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी किसी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे नीट हो चाहे जेडब्ल्यू मेंस हो, आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि आप अपने सब्जेक्ट को कितना इन डेप्थ जानते हो, है ना. जैसे ही आपको ये चीज क्लैरिटी हो जाएगी आपकी, अगर मैकेनिक्स स्ट्रांग होगी तो आप इस मैकेनिक्स को इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी लगा सकते हो. तो वही इस एग्जांपल से हमने देखा कि कैसे हमने मैकेनिक्स को इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर अप्लाई किया. तो नेट फोर्स जीरो हो गया, है ना. नेट फोर्स जीरो होने की वजह से मोमेंटम कंजर्व हो गया. मेन बात ये है कि मोमेंटम इज कंजर्व, और मोमेंटम जब कंजर्व हो जाएगा तो वहां से हमें अननोन डेटा कैलकुलेट कर सकते हैं. तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो बहुत स्टूडेंट्स इसमें प्रॉब्लम फेस करते हैं, क्योंकि मैकेनिक्स कंबाइन हो जाती है जब इलेक्ट्रोस्टैट्स के साथ, तो कई बच्चों को दिक्कत आती है जिनकी मैकेनिक्स क्लियर नहीं होती. इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ पार्ट मैकेनिक्स का भी एक्सप्लेन कर दिया ताकि इस एग्जांपल को समझने के लिए आपको पूरी क्लैरिटी आ जाए. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ओके, फ्रॉम द एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू. Next we are discussing, this is also very most important, also the center of mass of the system of the two particles is at rest, hence the net moment is balanced about the center of mass. तो यहाँ पे आप देखो सेंटर ऑफ मास, दोनों चार्जेस रेस्ट पे है तो दोनों का सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट पे है. अब दोनों चार्जेस का सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट पे है तो मास मोमेंट सेम हो जाएगा, है ना. मास मोमेंट मतलब इट इज बैलेंस, नेट मोमेंट इज बैलेंस अबाउट द सेंटर ऑफ मास, है ना. तो नेट मोमेंट बैलेंस हो जाएगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट. तो सपोज करो अगर हमें m1 पता है, लेट्स से 0.01 kg,
और x1 हमें फाइंड करना है। m2 हमें पता है 0.001 और x2 पता है 1 मीटर, है ना। तो यहाँ से हम एक फंडा लगा सकते हैं m1 x1 इक्वल टू m2 x2 बाय बैलेंसिंग द नेट मोमेंट अबाउट सेंटर ऑफ मास, है ना। तो नेट फोर्स क्योंकि जीरो है ना, तो सेंटर ऑफ मास भी मूव नहीं करेगा, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो है वो नेट मोमेंट बैलेंस हो जाएगा, नेट मास मोमेंट बैलेंस हो जाएगा। आई कैन से दैट m1 x1 इक्वल टू m2 x2। तो यहाँ पे हमने ये फंडा लगाया। m1 की वैल्यू हमें पता है, देखो 0.01 इंटू x1 विच इज इक्वल टू m2 की वैल्यू कितनी 0.001 इंटू x2। तो यहाँ से हमें x1 की वैल्यू मिल गई 0.1 मीटर्स। तो इस तरह से हम वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं, अननोन वैल्यू, अगर हमें ये सब की पॉइंट्स पता है तो कैसे हमने यहाँ सेंटर ऑफ मास विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मैकेनिक्स, हमने उसको कंबाइन किया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ये क्रक्स जानना बहुत जरूरी है। फिजिक्स जब आप पढ़ते हो तो कुछ टॉपिक्स एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऐसा ही सब्जेक्ट है जो उसके साथ मैकेनिक्स भी कंबाइन होती है, जिसके साथ वेक्टर्स भी कंबाइन होता है, जिसके साथ वर्क और एनर्जी भी कंबाइन होती है। आप अभी देखोगे, हम ब्यूटीफुल एग्जांपल्स के साथ इसको समझने की कोशिश करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो जो जो की पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप इसको कॉपी में नोट करते जाए, पेन पेंसिल लेके बैठे, जहां पे नहीं समझ आए वहां पे उसको पॉज कर दे, फिर भी कोई डाउट आता है यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स। लेट्स कंटिन्यू। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू की पॉइंट नंबर 10, द वैल्यू ऑफ के। जो हमने के की वैल्यू अभी निकाली थी, उस के की वैल्यू क्या होगी, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी हमने के की वैल्यू निकाली थी, कितनी निकाली थी, 9 इंटू 10 की पावर 9, है ना। के की वैल्यू कितनी निकाली थी बच्चों, 9 इंटू 10 की पावर 9। ये अभी अभी हमने देखा था प्रॉपर्टी में, 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालनी है, तो हमें के की वैल्यू पता है, और के को हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब हम के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से इक्वेट करेंगे इस इक्वेशन को, तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी मिलेगी, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन। एप्सिलॉन नॉट इज नथिंग बट वेरी सिंपल, इट इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब यहाँ पे कुछ थ्योरेटिकल पार्ट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि c है हमारा स्पीड ऑफ लाइट, और यहीं से स्पीड ऑफ लाइट को इस तरह से डिफाइन किया जाता है। स्पीड ऑफ लाइट इज डिफाइंड एज 1/√of μ0 into एप्सिलॉन नॉट, और μ0 होता है परमिएबिलिटी, जो आप मैग्नेटिज्म में पढ़ोगे, तो इसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लो। अभी हम खाली इससे डील करेंगे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, दोनों का प्रोडक्ट लेके जब मैं अंडर रूट करूंगा और उनका इनवर्स करूंगा, तो मुझे मिल जाएगा स्पीड ऑफ लाइट। इस तरह से स्पीड ऑफ लाइट को डिफाइन किया जाता है। तो यहीं से आप ये तो एक्चुअली बेसिकली थ्योरेटिकल डेफिनेशन है ना, तो थ्योरेटिकल डेफिनेशन है, तो आपको इसको एज इट इज याद रखना है। ये फॉर्मूला इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको पता है तो वेरी गुड। यहाँ पे हमें बेसिक इतना जानना है कि इसको एप्सिलॉन नॉट को हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये अभी आपको याद रखना है, आगे आपको धीरे धीरे क्लैरिटी हो दी जाएगी इसकी। नेक्स्ट इज द 11th की पॉइंट। ये कई बार नीट में पूछा हुआ है, नीट में भी पूछा है और मेंस में भी कई बार इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। फाइंड आउट द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एप्सिलॉन। हमने देखा एप्सिलॉन जो हमारी इक्वेशन में आया है, उसका हमें डायमेंशन निकालना है। तो डायमेंशन कैसे निकालेंगे, तो डायमेंशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, अगर हमें किसी भी चीज का डायमेंशन निकालना है तो हमें उसका बेसिक इक्वेशन पता होना चाहिए। जैसे फोर्स का बेसिक इक्वेशन क्या है, k इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द बेसिक इक्वेशन ऑफ फोर्स। अभी हमने कूलम्ब्स लॉ में निकाली। ओके, तो कूलम्ब्स लॉ में हमने फोर्स की वैल्यू क्या निकाली। अब k की वैल्यू हमें पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अभी हमने की पॉइंट में देखा, तो हमने उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब हमें एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकालना है, तो एप्सिलॉन नॉट को हम उस साइड ले गए, लेफ्ट साइड ले गए, और फोर्स को नीचे ले आए। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है बताओ बच्चों, मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्सेस। तो मास इनटू एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है LT-2 इनटू आर स्क्वायर, मतलब L स्क्वायर हो गया, ठीक है। और चार्ज को मैं लिख सकता हूँ करंट इनटू टाइम, तो करंट इनटू टाइम का स्क्वायर कर दिया, क्योंकि यहाँ पे Q इनटू Q है ना, तो Q हो गया करंट इनटू टाइम, फिर ये Q2 हो गया करंट इनटू टाइम, तो A स्क्वायर और T स्क्वायर हो गया। अब जब इसको आप इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यू विल गेट डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज m-1 L-3 T4 A स्क्वायर। इतना आपको निकालने के लिए JEE मेंस में और नीट में आपको फुल में से फुल नंबर मिलेंगे, अगर आपको डायमेंशन निकालने का प्रोसीजर पता है। तो किसी भी क्वांटिटी का, देखो डायमेंशनल एनालिसिस भी हमने इसमें कंबाइन कर दिया, अभी फिजिक्स का 11th का एक चैप्टर है। तो होता क्या है कि हम जब चैप्टर्स को कंबाइन करते हैं तो डायमेंशन वाला तो क्वेश्चन, कोई भी आप नई फिजिकल क्वांटिटी पढ़ रहे हो तो हमेशा डायमेंशन एनालिसिस कंबाइन होगा ही होगा। तो डायमेंशन निकालना हमें जरूर आना चाहिए, मतलब हमें बेसिक लॉज फिजिक्स के पता होने चाहिए और उनके फॉर्मूलेस पता होने चाहिए, तो हम डायमेंशन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।